So I should go ahead? Yes, sir, please. Okay. Well, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be amongst you. Uh, uh, Renuji and Mr. Sanskaran Mishra, they have been very active, and we must thank them for getting all of us together. The subject that they've placed before us for discussion is a very interesting and very important and also a very contemporary issue. We have dealt with such contemporaneous issues all the time in our lives, but nothing of this scale and nothing of this damaging dimensions. There were times in 1919 when I used to be director in the company affairs department, and we remember that India had gone and borrowed. We had been left with only 2 or 3 weeks of foreign exchange reserves to meet our import requirements. But we went to IMF, pledged our gold, and borrowed $1 billion, and we came out shining, and the economy was stabilized. Today, we are in the midst of some huge uncertainty. We don't know the enemy. We don't know who is our enemy. We don't know what he's going to do. We don't know when he's going to come and when he's going to go. And all we have done is we have gone into our bunkers, stopped all activity, and only surviving on, eating and maybe meditation and spiritualism. Now, this is a situation which any active nation cannot continue with. Certainly, in a huge country like India, where we have a young population with a huge dream, and we cannot afford this kind of a slowdown. So I think the Prime Minister and the others have been very correct in saying that we have to start living with it. Now the question is, when we start living with it, how do we overcome the handicap and the gap and the injury of the last 3 months? Now let's see what the government has done. The government has been pretty overactive and proactive in trying to do things, but the results of these things will be visible not very soon. It will take about a few months for it to come to a level where we can observe and see, and any result which cannot be measured is really of no consequence. So we should be able to see our real-time GDP growth without inflation and real-time growth in the employment numbers in the country. But you think that whether I think it's the strategy of the government is good enough? Well, I have a very old view on the subject, that our economy is not as resilient as the other Western economies. By resilience, I mean that you tweak if in America the Federal Reserve changes the bank rate, the impact is felt like an earthquake all the way through the economy. In India, it doesn't happen. The monetary tweaking of the repo rate or the other bank rate at the RBI level does not always go down beyond metropolitans or beyond the industries. It has no effect on a farmer in Barabanki. He doesn't even care what if RBI is reduced or RBI is increased. All he cares, does he have money in his hand? Now that's what the government needs to do, that they should put money in the hands of the people. But the risk is you create a demand and you don't have a supply response to that demand, there will be inflation. The further risk is, once I see that the price of dal and rice has gone up, and because everybody is looking for it, people are willing to pay 2 rupees more per kilo. So the worst thing that can happen, the worst thing is that our inflationary expectations go up. You see a whole lot of
the government has pumped in something like 30,000 crores through the banking system. That means government has given government bonds to the RBI, and the RBI has printed money and give it back to the government. So this money is only printed. This is only paper money, which is, you could take it to Narega, you can take it to Amarega, you can take it to anything, but it's printed money. It is not that it is a money which is flowing out of foreign exchange incomes or something. It's just printed money. In fact, the RBI, slight digression, the RBI, I hope everybody can you confirm if I'm audible, please? Can you confirm, please? Mr. Mishra, can you confirm I'm audible? Mr. Mishra? Hello? Am I audible, please? Hello? Is there somebody? Hello? Is somebody monitoring this technology or what? Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Okay, so I was saying, I'm assuming that all of you are able to listen to me and I'm audible and there's no problem on the sound. So we were at this issue about RBI pumping in money through some welfare schemes, through some famous, dig the hole and fill them up type of scheme that, people in villages would be doing earthwork and they'll be paid. These are Manrega type of schemes. They will be digging ponds, hoping that they will fill up in the monsoons. Fine. The money is going to the people. We want demand to pick up. Now, the demand will definitely pick up, and I'm sure the government's policy will be very successful. But if demand is not matched by a supply response, then there will be inflation. That's what I was saying. Now, if there is inflation and people see that the inflation is rising, then what do I do? हम क्या करते हैं? आप देखते हैं कि भाई आज दाल का दाम 5 रुपए किलो बढ़ गया, पिछले हफ्ते तो कम था, अगले हफ्ते आपने फिर देखा यार फिर और बढ़ गया 5 किलो, 5 रुपए पर किलो, तो आपने कहा भाई नाउ आपकी खुद की इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, आप खुद सोचने लगेंगे कि भाई अब तो अगले हफ्ते 5 रुपए बढ़ेगा, तो भाई क्या हो, तो आप खरीद लो, तो यू विल स्टार्ट बाइंग मोर, जैसे भैया खरीद के रख लो 6 महीने की, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, कोई महीना भर के लिए खरीदेगा आगेगा, कोई 6 महीना खरीदेगा, बट इस इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन से डिमांड एकदम से जंप करेगी एसेंशियल कमोडिटीज के लिए या वट एवर कमोडिटीज, पीपल विल स्टार्ट होर्डिंग, सप्लाई रिस्पॉन्स उतना नहीं हो पाएगा, एंड इफ द खुदा न खास्ता अगर ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, दिस लीड्स टू व्हाट वी कॉल हाइपर इन्फ्लेशन. नाउ इन्फ्लेशन जब होता है तो आपको मालूम है कि जो 10 रुपए की वैल्यू है इन्फ्लेशन के रेट से उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाती है. कहीं ऐसा ना इन्फ्लेशन हो जाए जैसा कि ब्राजील में हुआ था, 1000% इन्फ्लेशन हुआ, तो वहाँ का जो रुपया था, जो उनका रियाल था, उस रियाल को लोग टॉयलेट पेपर की तरह यूज कर रहे थे, उसकी टॉयलेट पेपर से भी कम वैल्यू रह गई उस रुपए की. तो ये रिस्क है. मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया, बट नाउ दे हैव टू सी दैट द सप्लाई रिस्पांस कम्स. उसके लिए आपने आज देखा होगा कि मीडियम या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को और बढ़ा दिया है, उसकी जो एलिजिबिलिटीज है बढ़ा दी है. बट ये सब होने के बावजूद मेरा क्या इसमें विचार है कि हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं.
जहां पे काम है वहां पे लेबर नहीं है। चेन्नई में अगर बहुत काम है, इंडस्ट्री है, तो वहाँ लेबर नहीं है, तो ये लेबर जाएगा यूपी बिहार से, वही माइग्रेंट लेबर है। महाराष्ट्र में काम है तो वहाँ आदमी नहीं है। आदमी जहाँ यूपी में है वहाँ काम नहीं है। बिहार जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हम क्या कर सकते हैं? हमारे हिसाब से अगर एक बहुत भयानक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म चलाया जाए तो आने वाला मॉनसून जो आपका नॉर्मल होने वाला है, इसी में आप इतना गल्ला सामान उगाइए कि यू बिकम वन ऑफ द लीडिंग नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन एंड ऑल दैट बट ऑल्सो एक्सपोर्टर्स। इसी के बाद देखिएगा, अभी अभी अफ्रीका में शॉर्टेज होगी, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो और वहाँ पे फिर आपको देश कमाएगा भाई। आफ्टर ऑल आपके लोगों ने मेहनत करी है, पैसे लगाए हैं, तो उसको तो अफ्रीकन अफ्रीकन देशों में कोई पैसे की कमी तो है नहीं। नाइजीरिया का ऑयल आउटपुट इज सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो उनको आप भेजिए, उनको कमाइए। सो इस तरह के स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज को थोड़ा सा चेंज करके सप्लाई रिस्पांस को और बढ़ाया जा सकता है। वैसे आएगा सप्लाई रिस्पांस, जो इंडस्ट्री अगर वापस चल गई तो उसी में से निकलेगा सप्लाई। पर अभी ये मौका ये है कि आप स्ट्रक्चरल डेफिनेशन चेंज कर लीजिए और बढ़ा लीजिए, अपना आउटपुट और बढ़ा लीजिए। दूसरा मौका ये है, इतना हाई एडवांटेज है कि जो जो बेसिक चीज़ें आपके यहाँ नहीं बन पाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको देश में बनाना चाहिए। आज एक छोटा सा टॉय, उस टॉय को आप बना नहीं पाते हैं। आप बना नहीं पाते हैं तो आप बेचते नहीं हैं। वो बेचते नहीं है तो चाइना से लोग ले आते हैं। चाइना से लोग ले आते हैं तो फिर आपका और नहीं खरीदते, तो फिर आपकी इंडस्ट्री और नहीं चलती। तो यू हैव टू हैव अ क्वांटम जंप एज दे से। आपको इतना अच्छा एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम लोग मोबाइल फोन्स इतने कम बनाते थे, अब थोड़ा सा आने लगी इंडस्ट्री मोबाइल फोन की। क्यों नहीं बना सकते मोबाइल फोन? तो बनाइए, आप यहाँ पे बनाइए। हर चीज में कहीं ना कहीं फॉरेन लिंक निकल जाता है, तो दैट इज, वी हैव टू ब्रेक दैट फॉरेन लिंक, वी हैव टू बी। हमारा देश ही है 130 करोड़। आपको बताएं कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, जो पहले क्वीन का था, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, उसको उन्होंने कॉमनवेल्थ करके बनाया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, कल एक मजाक में मैंने किसी जगह बोला कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है और नंबर 2 कंट्री उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो उत्तर प्रदेश से बड़ी। ये तो हमारे देश का स्केल है। तो हम अपने लोगों को खिलाए पिलाए, बना पिला के। चाइना का यही दोष है। चाइना की अपनी इंटरनल डिमांड इतनी है कि उसके लिए जो बनाते हैं उसमें इतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। हम वहीं पे हम कहीं बीच में रुक जाते हैं, फिसल पट्टी में कहीं बीच में अटक जाते हैं स्नेक एंड लेडर में। तो क्या होता है, आप चल रहे हैं, कहीं काट लेगा, नीचे आ जाएंगे, पता नहीं क्या होता है हमारे देश में। बिकॉज आई थिंक वी आर, अगेन आई गेट इट टू द स्ट्रक्चरल थिंग, हमारा इंस्टीट्यूशंस आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सिर्फ बड़े बड़े लोगों को जेल में बंद करने से इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं हो जाते। मेरा कहना है कि आपको ये देखना है कि कल हम भ्रष्टाचार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कैसे कम करें। कोई आदमी पटवारी से बिना पैसे दिए कोई अपने घर का नक्शा ला सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आप कितना भी कर लीजिए, यहाँ तो वो ले ही लेगा 20-25 रुपये। कहीं, मैं आई डोंट वांट टू नेम एनी अदर इंस्टीट्यूशंस, इस लोअर लेवल पे इतना, अभी भी इतना भ्रष्टाचार है, और उसको खत्म कर दीजिए। बड़े आदमी तो पकड़ में आएंगी, उनकी बड़ी चीजें कहीं छुपती नहीं, पर छोटे आदमी की कोई चीज समझ नहीं आती, आदमी परेशान घूम रहा है। तो ये सब स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज अपनी कंट्री की बदलते रहे। ये मौका है इस वक्त। आपने आपके देश का खून पूरा साफ हो चुका है इस वक्त। ये आप उसको अगर आप ठीक से और सहज, ये ये बहुत दिनों बाद एक ऐसा आपको प्रधानमंत्री मिला है जो बहुत अपनी बुराई को पब्लिक में, कोई कोई 70 साल में ऐसा बड़ा नेता नहीं हुआ
जिसने ये कहा हो कि हम स्वच्छ नहीं है इसलिए हमको स्वच्छ करना है। मैंने तो नहीं सुना। हिम्मत चाहिए आपको पब्लिक में अपने को अस्वच्छ कहने के लिए। इन्होंने पहले ही अपने पहले भाषण में 15 अगस्त को कह दिया ये। तो आफ्टर ऑल इतना बड़ा आपको लीडर मिला है जो आपके साथ चलने को तैयार है, अब आप हर चीज उनके ऊपर डाल दीजिए तो वो भी नहीं चलेगा। अपने को अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजें करना चाहिए। तो यही आया कि मैक्रो माइक्रो स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स एंड सप्लाई साइड रिस्पॉन्स, अगर ये आता है तो आई एम श्योर कि इन द नेक्स्ट 2-3 months द इकोनॉमी विल बी ऑल राइट। और जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, ये तो वैसे भी गिरता हुआ दिख रहा है कि इसका ट्रांसमिशन इफेक्ट एक से दूसरे तीसरे चौथे सुनते कि 18-19 के बाद वैसे ही खत्म हो जाता है। और ये मत घबराइए कि ये यहाँ आ गया है, अरे भाई मलेरिया भी था वो भी चल रहा है, पोलियो था वो भी चल रहा है, रेबीज थी वो भी चल रही है, चिकन पॉक्स था वो भी चल रहा है, HIV एड्स है वो भी सब चल रहा है। पर अपना अपना है, आता है किसी को होता है, उपचार होता है, ये होता नहीं होता, चलिए। तो इस तरह से इसके बारे आप डर के रहें और इसके बारे कहें कि अरे भाई हमारा प्रलय हो गई और कल की अवतार होगा, इस तरह की बातें करने से कोई मतलब नहीं। अपने स्तर पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ ध्यान दिया जाए, छोटी छोटी चीजें जो है देखा जाए क्या कर सकते हैं। रेणु जी, आपने इसको ऑर्गेनाइज किया, मुझे मौका दिया बोलने का। आई होप आई डिड नॉट speak too long and too much and too fast, but I'm very happy that I could communicate. Only thing is कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग सुन भी पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। वैसे बताया किसी ने कि हाँ मैं सुन पा रहे हैं, तो अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आपका सेमिनार 2 दिन का सक्सेसफुल होगा। इसकी रिकमेंडेशंस निकालिए, फिर बैठिए, एक ग्रुप बनाइए, उसको आगे देखिए कैसे ले जाना है। बूंद बूंद करके ही होता है। आपकी भी कोई बात है, आप उसको कहा जाएगा कहीं किसी लेवल पे, गवर्नमेंट में ही बताया जाएगा कि लोग, पर अगर प्रैक्टिकल बात हो और कोई ऐसी चीज़ हो जो सोचने लायक हो तो उसको ऊपर भी ले जाया जाए। आशा है कि इस सेमिनार में से इस प्रकार की कोई नई नई थिंकिंग निकलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। कोई कोऑर्डिनेटर ये बता पाएगा कि मुझे क्या करना है अब? मोतीराम जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। स्वास्तिक जी, प्रियंका उप्रेती जी, थैंक यू सो मच। शैली महाजन जी, थैंक यू सो मच। प्रेम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Trivedi sir. Thank you. Your motivational speech gives all of us solution to pass easy life in Corona time, sir. Thank you so much, sir. You are real hero of the real life, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.